आप लोग सब आराम से बैठ जाएं। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता, कल्पना या हो सानिया मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। नमस्कार, मैं समीर चावला, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय एमएड थर्ड सेमेस्टर का छात्र। आज के इस सेमिनार जिसका उन्वान है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड वीमेन एम्पावरमेंट, में आप सबों का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मनीषा कुमारी को दावते सुखन देता हूं इन पंक्तियों के साथ। इसे बेटा बनाकर पालो तो इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बनाकर पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नज़रअंदाज मत करना, जरा सा पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। मनीषा आए और कार्यक्रम के आगे का वो विधिवत रूप से संचालन शुरू करें। धन्यवाद। Thank you, Sumit, for welcoming me. The ability to read, to write and analyze, the confidence to stand up and demand justice and equality, the qualification and connections to get your food in the door and take your seat on the table. All of that starts with what? Education. Good morning, good afternoon everyone. I'm Manisha Kumari with my co-host Swati and Ankit, delighted to be your host for this seminar presentation. It is a great honor and privilege to welcome you all to this event. I would like to express my sincere gratitude to our esteemed chief guest, Dr. M.M. Shukla Sir, Department of Education, S.S. Sinha Bhavan, AM College, for gracing this occasion with his presence. I would like to welcome our special guest in absentia, that is our Assistant Professor, Dr. Tarun Tyagi Sir, Assistant Professor, Department of Teacher Education, Central University of South Bihar, and express my warm welcome to all the dignitaries and faculties and would like to thank them for their presence. We are indeed fortunate to have eminent personalities with us today. I would also like to acknowledge the presence of our presenters. We are eagerly looking forward to hear the insights from them. Sir, he is on the way. Yes. We are about to commence our event by lighting the lamp of knowledge and wisdom. This is a symbolic moment that signifies the dispelling of darkness and igniting of thought and enlightenment. It's an honor to invite all the dignitaries for lighting the lamp. दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेषबुद्धि विनाशाय, आत्मज्योते नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते।
Thank you, everyone. Now I would like to call Ishraq Alam from MAd 3rd semester CUSB for giving token of respect to Head of Department, AM College, MM Shukla sir. Now I would like to call Deepak for giving token of respect to Dr. Vijay Kumar sir. Now I would like to call Sameer for giving token of respect to Professor Iswar Singh sir. Now I would like to call Pankaj for giving token of respect to Dr. Mahesh Lal Hal sir. Now I would like to call Onam for giving token of respect to Dr. Brij Mohan sir. Now I would like to call Ankit to give token of respect to Dr. Praveen Kumar sir. Welcome you all sir here. Now we are proceeding to our technical session. Seminar is very beneficial as you can gain valuable soft skills to help you in professional or personal life. Also improving communicational skills, motivation and confidence. Also presenting seminar is an inevitable part of your journey. The seminar presentation is to be done under two themes, that is, for section A, will be presenting on the theme National Education Policy 2020 and section B will be presenting on importance of women education. For further proceedings, I would like to call Swati. Thank you, Manisha, for calling me up on the stage. Before proceeding to the main part of the seminar, let me quickly brief you all with the rules of seminar. Please be attentive and actively listen to the participants. Avoid distractions such as using your phones or engaging in unrelated conversation. Embrace different perspectives and be willing to consider alternative viewpoints. It is a request to all the speakers to adhere to the general rules of speaking in a public session and adhere to the 5 minutes slot given to them. सभी से ये अनुरोध है कि वे प्रतिभागियों को ध्यान से सुनें। कृपया सेमिनार के दौरान अपने फ़ोन का उपयोग करने या असंबंधित बातचीत में शामिल होने से बचें, विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाएं और सभी को समझें। प्रतिभागियों से यह अनुरोध है
कि वे सहजता से अपने विचारों को व्यक्त करें एवं दिए गए 5 मिनट के समय का पालन करें। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात सिर्फ इच्छा करने से काम पूर्ण नहीं होते, बल्कि व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं नहीं आता, शेर को परिश्रम करना पड़ता है। इसी के साथ मैं हमारे एचओडी सर से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें आगे की प्रोसीडिंग के लिए अनुमति दें। With this, I would now begin our first seminar session, which will be on National Education Policy 2020. The first participant for this session is Abhinav Raj from Section A. Please give them a big round of applause. आदरणीय एचओडी सर, उपस्थित शिक्षकगण, हमारे सहपाठी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आए हुए हमारे सीनियरगण, मैं अभिनव राज, रोल नंबर 40, सेशन 23-25 का छात्र आज का सेमिनार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर अपना विचार रखने जा रहा हूँ। भारतीय शिक्षा क्षेत्र के स्वरूप में सुधार करने के लिए वर्तमान सरकार ने एक व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पेश की है। उम्मीद है कि यह पिछली शिक्षा नीतियों के सारी कमियों को दूर कर देश के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जनता को शिक्षित बनाओ और उनका सर्वांगीण विकास करो, तभी राष्ट्र का स्वरूप संभव है। पूर्व की शिक्षा नीतियों के अलावा इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को जोड़ा गया है, जिसमें मिडिल स्कूल स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण को शामिल किया गया है, जैसे बागवानी, बढ़ई और बहुत से अन्य संबंधित विषयों का प्रशिक्षण कराया जाएगा, जिसके आधार पर छात्र मिडिल स्कूल से पास करने के बाद अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे अगर वो आगे की पढ़ाई नहीं करते हैं तो, और अगर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उस आधार पर भी वो आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। इसमें छात्र को 12वीं के स्तर पर अपनी रुचि के किसी भी विषय को चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। वे साइंस के साथ अब आर्ट्स या कॉमर्स का भी विषय पढ़ सकेंगे और वे अपने रुचि के अनुसार जो भी उनका, अगर वो साइंस से लेते हैं, विज्ञान के साथ अगर उनका आर्ट्स से किसी सब्जेक्ट इतिहास या भूगोल किसी विषय को पढ़ने की इच्छा हो तो उस अनुसार भी अपना विषय चुनकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य है, जो पहले नहीं था। इसमें नई पीढ़ी के छात्रों को सुयोग्य शिक्षक और शोध क्षेत्र में कुशल मार्गदर्शन प्रदान करेगा और वे आगे चल के एक अच्छे भविष्य की ओर बढ़ेंगे। इसमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल किया गया है। वो जिस क्षेत्र के आधार पर है उसके अनुसार पढ़ाई करेंगे ताकि वो सही से समझ सके। अगर वो किसी दूसरे क्षेत्र से उनको अगर पहले अपने मातृभाषा में शिक्षा नहीं दिया जाता तो वो सही से समझ नहीं पाते हैं और वो आगे सही से पढ़ नहीं पाते हैं। इन्हें लागू करने में बहुत सी चुनौतियां भी हैं, जैसे हमारे शिक्षा प्रणाली में प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी है और अगर प्रशिक्षित शिक्षक है भी तो उनको उनके कार्य के अनुसार वेतन नहीं दिया जाता है, जिसके आधार पर वो सही से शिक्षा आगे नहीं दे पाते हैं। शिक्षा संबंधी सूची में होने के कारण अधिकांश राज्यों में अपने स्कूल बोर्ड है, जिसके अनुसार वे नई शिक्षा नीति को लागू करने में थोड़ी उनको कठिनाइयां भी होगी। बस इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित, सॉरी अभिनव। इसके बाद मैं दूसरे नंबर पर बुलाना चाहूंगी कुंदन कुमार को सेक्शन ए से। प्लीज सभी ताली बजाएं। Honorable HOD sir and respected all teachers and my dear classmates and all students coming from Central University of Bihar of MA student. Myself, good afternoon. Myself, Kundan Kumar, I am describing the topic NEP 2020.
भारतीय शिक्षा क्षेत्र के स्वरूप में सुधार करने के लिए वर्तमान सरकार ने एक व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पेश की। नई शिक्षा नीति सभी बंधनों को तोड़ विद्यार्थी को अपनी सीमाओं को बाहर एवं नए अवसर तलाशने की मदद करेगी। न्यू NEP 2020 के नवीनतम संस्करण में इसी शिक्षा प्रणाली का मकसद है जो भारतीय ज्ञान पर केंद्रित है, जिसके जरिए हमारा राष्ट्र एक ऐसा समाज बन सकता है जहां ज्ञान की अविरल धारा से उपलब्धियों का कोष समृद्ध होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 5+3 3+4 पैटर्न फॉलो किया गया है। इसमें 12 साल की स्कूल शिक्षा होगी और 3 साल की फ्री एजुकेशन शिक्षा होगी। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल में 5वीं तक शिक्षा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में दिया जाएगा। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली स्नातकों में अनुसंधान के लिए रुचि या उसके लिए उपयुक्त माहौल तैयार करने में विफल रही है, जिससे एक नए पेटेंट हासिल करने और ज्ञानवर्धक किताबों के प्रकाशनों में हम बिछड़ रहे हैं। इस बिंदु पर ध्यान देते हुए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 में शामिल किए गए उन बिंदुओं का जिक्र किया गया है जो इस प्रकार से: व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, विषय चुनने की आज़ादी, परास्नातक स्तर पर रिसर्च प्रोजेक्ट अनिवार्य, सहायक प्रोफेसर बनने के लिए PhD अनिवार्य, विदेशी यूनिवर्सिटियाँ भारत में काम कर सकेंगे। इसके चैलेंजेस भी कुछ आए हैं। NEP 2020 के वादे निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी हैं और हमारी शिक्षा प्रणाली और रोजगार की दिशा में उज्जवल भविष्य का आगाज कर रहे हैं। इस नीति को कुछ अड़चने का भी सामना कर पड़ सकता है। अभी हमारी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में हाई स्कूल स्तर पर विभिन्न व्यावसायिक विषय संबंधी अपेक्षित प्रशिक्षण उपलब्ध कराना एक मुश्किल काम है। इसलिए सबसे पहले विभिन्न राज्य सरकारों को पहले हमारे स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षकों को भर्ती के लिए बड़ा अभियान चलाने की जरूरत होगी। नई शिक्षा प्रणाली के सामने एक चुनौती शिक्षकों की कमी भी को दूर करना भी है। इनमें से एक मुख्य चुनौती शिक्षा की गुणवत्ता शामिल भी है। इसमें से एक चुनौती शिक्षा के लिए धन की कमी भी हो सकती है। हालांकि भारत सरकार ने हाल के वर्षों में शिक्षा के लिए धन में वृद्धि की है, लेकिन ये फिर भी उस राशि से कम है जो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और पहुंच को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। भारतीय शिक्षा प्रणाली को समानता के मामले में भी चुनौतियों का सामना कर पड़ सकता है। निष्कर्ष: भारतीय शिक्षा प्रणाली को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हमें इन चुनौतियों पर विचार करने की जरूरत है ताकि हमारा सुनिश्चित कर सके कि सभी बच्चों को भारत में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। थैंक्स फॉर Sorry for the interruption, but we are having our special guest, that is our Professor Dr. Tarun Tyagi sir. I would like to welcome our special guest, Dr. Tarun Tyagi, Assistant Professor, Department of Teacher Education, Central University of South Bihar. He is a great personality for us and a great teacher and professor. Thank you, sir. He has done PhD from BHU. He is gold medalist in MPhil. He is also coordinator at Pandit Madan Mohan Malviya National Mission for Teacher Training. Recently he got fellowship from NCERT National Award for promoting innovative practices and experiments in education for schools and teacher education institutions. He has many research papers published as well from the NCERT, and he is just an eminent personality, a perfect professor, a great intellectual, and a writer. Thank you, sir, for your presence here. Now I would like to invite the HOD of the department to facilitate our Dr. Tarun Tyagi, sir.
Thank you, sir. Now we are proceeding with our technical sessions. I'm calling Swati for proceedings. Thank you, Manisha. Now, after Kundan Kumar, I would like to call upon the stage Saurabh Kumar to present his view on National Education Policy 2020. Please give him a big round of applause. आदरणीय HOD सर, हमारे सहायक प्रोफेसर सर और हमारे सहपाठी एवं साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आए हुए एमएड से मतलब प्रशिक्षु शिक्षक, मैं सौरभ कुमार, रोल नंबर 6, सेशन 2023-25। आज का टॉपिक NCP 2020, इस पे कुछ अपना बोलने जा रहा हूँ। NEP 2020 भारत की शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। यह नीति भारत की परंपराओं और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में कई अहम बदलाव किए हैं, जिसका उद्देश्य देश को विश्व स्तरीय और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सेंट्रल कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी है। यह 34 वर्षों के बाद भारत का सबसे बड़ा शैक्षिक सुधार है, जो कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनाई गई है। NEP में फर्स्ट ड्राफ्ट 1986 में तैयार हुआ था और इसके 6 वर्ष के बाद इसमें संशोधन हुआ था। अब करीब 34 वर्षों के बाद इसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिसका ढांचा 5334 है। NEP स्कूली शिक्षा में 10+2 के पुराने शैक्षणिक ढांचे को संशोधित और उन्नत करेगी। 5334 का एक नया शैक्षणिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जो 3 से 18 वर्ष की आयु के छात्रों को कवर करेगा। NEP में 2020 में पाठ्यक्रम का पुनर्गठन होगा और पुराने शैक्षणिक ढांचे को बदलकर नवीनतम शैक्षणिक ढांचे को विकसित किया जाएगा। वर्तमान में 10+2 में शैक्षणिक संरचना में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कवर नहीं किया जाता है, क्योंकि कक्षा 1 6 वर्ष की आयु से शुरू होती है। नई शिक्षा नीति 5334 संरचना में प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा का एक मजबूत आधार अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 3 साल की उम्र से ही शामिल है। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य कम उम्र से ही बेहतर विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। NEP 2020 के तहत 2 वर्ष के प्री प्राइमरी शिक्षा 3 से 6 साल के बच्चों के लिए होगा। इस 2 वर्षीय प्री प्राइमरी स्कूलिंग का उद्देश्य बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करना है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को ऐसी गतिविधियों में लगाया जाना है जो उन्हें खेल, मनोरंजन आदि के माध्यम से सीखने और समझने में मदद करेगा। NEP 2020 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 वर्ष से 18 वर्ष के आयु के छात्रों को कवर करेगा। NEP 2020 में 3 वर्ष की प्री स्कूलिंग या आंगनवाड़ी और उसके बाद 12 वर्ष को स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाएगा। NEP 2020 का उद्देश्य मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कराना है। NEP 2020 में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र के प्रमुख सुधार लाना है। नई शिक्षा नीति प्रत्येक छात्र की अनूठी क्षमताओं पर केंद्रित है, जो छात्रों को संरचनात्मक सोचने के लिए प्रेरित करेगा और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करेगा। परीक्षा के लिए सीखने के बजाय उसमें अवधारणात्मक समझ पर अधिक जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बहुभाषावाद, स्थानीय भारतीय भाषा और शिक्षण और सीखने में भाषा की शक्ति को बढ़ावा देगा। धन्यवाद सौरभ, आपने नई शिक्षा नीति के सारे उद्देश्यों को बहुत अच्छे से बताया। अब आगे मैं बुलाना चाहूंगी निखिल भारद्वाज को, सेक्शन की। परम आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय, सम्मानीय शिक्षकगण एवं CUSB से आए हमारे सीनियर्स, मैं आपके सामने NEP पे कुछ अपना बात रखने जा रहा हूँ।
सबसे पहले एनईपी कोठारी कमीशन की सिफारिश पे लागू किया गया था, वो 1968 में। उसमें कुछ कमियां थी जिसे 1986 में सुधारा गया और उस 1986 के बाद 1992 में संशोधन किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। 1992 के बाद 1986 में जो बना था उसके 34 वर्षों के बाद नया एनईपी तैयार किया गया, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया 2020 में, जिसे एनईपी 2020 कहा जाता है। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 वर्ष पूर्व 1986 में बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। बदलते क्यों किया गया था, इस पे बात करते हैं। आवश्यकता क्यों पड़ी नई शिक्षा नीति की? तो बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की जरूरत पड़ी। भारतीय शिक्षण व्यवस्था को वैश्विक स्तर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई है, अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। इसमें कई प्रावधान हैं जो निम्न प्रकार से नई शिक्षा नीति में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई है, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 26.3%, जो कि 2018 के डाटा के अनुसार है, बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। एनईपी 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र मिलेगा, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा का मिलेगा, 3 वर्षों के पश्चात स्नातक की डिग्री मिलेगी तथा 4 वर्षों के पश्चात शोध के साथ स्नातक का डिग्री मिलेगा। एनईपी 2020 के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। इसमें विकलांग बच्चों के लिए भी अलग तरीके का प्रावधान आया, दिव्यांग बच्चों के लिए, सॉरी विकलांग नहीं, हमारे मोदी जी ने इसको दिव्यांग कर दिया इस शब्द को। तो उनके लिए संसाधन उपलब्ध करवाना, सहायक उपकरण उपलब्ध करवाना और शिक्षकों का पूर्ण समर्थन और इंक्लूसिव एजुकेशन पे विशेष ध्यान दिया गया। एनईपी खास करके प्रौढ़ शिक्षा के लिए आया था और उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। इसको लागू करने में अनेक तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे राज्यों का सहयोग इसमें अहम भूमिका निभाएगी। राज्यों में अपना अपना बोर्ड चलता है तो उसको वहाँ भी लागू करना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण कदम साबित होगा। एनईपी 2020 के आने से एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा महंगा हुआ, उच्च शिक्षण संस्थानों में महंगी शिक्षा हुई है। शिक्षा का दक्षिण भारतीय राज्यों का आरोप है कि वो शिक्षा का सांस्कृतिकरण किया जा रहा है, जैसे हिंदी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और मातृभाषा पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। फंडिंग संबंधी जांच का अपर्याप्त होना भी एक चुनौतीपूर्ण कदम होगा। फंडिंग आधे रास्ते में आधा हो जाता है। जीडीपी का 6% वित्त पोषण पे खर्च किया जाएगा। कुशल शिक्षकों का अभाव है, जिसको प्रशिक्षण के द्वारा पूरा किया जाएगा। बाकी शिक्षा के बारे में ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है ताकि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया है, परंतु व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, जिसका कोई उद्देश्य होता है, जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है।
शिक्षा के द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य बालक के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपना विचार रखा है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है और इसी शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए पॉलिसी हमेशा अपने नीतियों में संशोधन करते रहती है और एनईपी 2020 को इंट्रोड्यूस किया गया। धन्यवाद। धन्यवाद निखिल। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सारे चुनौतियों को काफी सहजता से बताया। अब आगे मैं बुलाना चाहूंगी विकास कुमार सेक्शन ए से कि वो यहाँ पर आया अपने